ہماری حکومتوں کو کیوں فارغ کیا گیا؟ ہماری حکومت نہ گرائی جاتی تو پاکستان خوشحال ملک ہوتا۔ نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی تقریب سے لاہور میں خطاب، کہا 1 ارب درخت اور 350 ڈیم کی بات کرنے والے اورنج لائن دیکھیں، کسی جماعت نے اتنا کام نہیں کیا جتنا مسلم لیگ نون نے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں بہت عمدہ پروگرام شروع ہوا ہے، اسکیم کے اجرا پر خوشی ہو رہی ہے۔ عوام سے قرض کی مد میں کوئی سود نہیں لیا جا رہا، عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو مسائل سے نکالیں۔ مشکل سے ابھی آدھا وقت پورا کیا تھا، پھر فارغ کر دیا گیا، کیوں؟ تو میں کہتا ہوں اگر وہ مومنٹم جاری رہتا جو 1990 میں ہم نے شروع کیا تھا تو آج پاکستان اتنا خوشحال ملک ہوتا کہ دنیا رشک سے اس ملک کی طرف دیکھ رہی ہو۔ ٹریک ریکارڈ دیکھیں، بتائیں مجھے اور کون سی ایسی حکومت ہے، جماعت ہے جس نے پاکستان پہ اپنی حکومت کی ہو اور اس نے اتنا کام کیا ہو جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا۔ بے حد خوشی ہو رہی ہے مجھے اس پروگرام کے اجرا پر۔ یہ بہت ہی عمدہ پروگرام شروع کیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سرپرستی میں پنجاب گورنمنٹ نے۔ کتنی عمدہ بات ہے کہ قرض بھی دیا جا رہا ہے اور کوئی سود اس پہ وصول نہیں کیا جا رہا ہے، ایک پیسے کا بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عوام کا پیسہ عوام ہی پر خرچ ہونا چاہیے۔ گالم گلوچ کے بجائے صوبے کی عوام کی خدمت کریں۔ سیاست کی اجازت تو مل سکتی ہے مگر دہشت گردی کی نہیں۔ لاہور میں تقریب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب، کہا کہ فتنہ فساد گروپ کا پورا فوکس گالم گلوچ پر ہے۔ پنجاب جا کر آگ لگا دو، سر پھاڑ دو، اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں، اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں، ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ، گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، مار دو، مر جاؤ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ۔ جو جیل میں بیٹھا اس کی جانب سے تربیت یہ ہوئی ہے کہ ترقی کو روکنا کیسے، انتشار کیسے کرنا ہے، فتنہ کیسے کرنا ہے، فساد کیسے پھیلانا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں، صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے۔ سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی۔ پاکستان آ کر برسوں کا خواب پورا ہوا۔ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آیا۔ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، کہا پاکستان کے عوام کا اسلام سے جذبہ بہت گہرا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں آپ کا احترام ہے، میں بھی آپ کی تقاریر سے استفادہ حاصل کرتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے برسوں کا خواب پورا ہوا۔ آج میں الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوں اور اللہ نے میری خواہش جو برسوں کی تھی وہ پوری کی۔ پورے دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہے جو اسلام کے نام پہ، جو واحد ملک جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا وہ ہے پاکستان، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور امپلیمنٹ کرے۔ جہاں تک کہ میرا علم ہے ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پریکٹیکلی قرآن اور جو حدیث کے اوپر عمل کرے تاکہ ہم انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی سفل ہو۔ ماشاءاللہ مسلمان کے جو دیگر ممالک ہے جو میرے ویڈیو کیسٹ دیکھتے ہیں، میرے لیکچر دیکھتے ہیں، ان میں سے جو پاکستانی ہیں ان کا ایک خاص درجہ ہے، دے ہولڈ اے اسپیشل پوزیشن۔ اور جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے ان سے آؤٹ آف دا کنٹری، چاہے گلف کنٹری میں ہو، سعودی عربیہ، قطر، دبئی، یو کے، تو ان کا پیشن ماشاءاللہ جو تھا، اور مجھے سب سے زیادہ انویٹیشن میری زندگی میں پاکستان سے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معیشت بہتر، مہنگائی کم، ٹیکس فائلرز میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں اضافہ کرنا ہے، پائیدار ریاستی اور معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، معاشی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ Administration strongly believes that the government is there to provide policy framework and policy continuity. The banking sector, the message is very loud and clear
that they need to start lending to the private sector. It's the private sector which has to lead the country. That this macroeconomic stability जो इस वक्त आई है मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम पूरी तरह leverage करें to ensure that we continue with the structural reforms. And it is a defining moment for the country that we go with full rigor and vigor in terms of the structural reform. की मईशत फल फूल रही है, स्टॉक मार्केट से भी बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मईशत को मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन करार देते हुए कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। उन्होंने कहा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, बरामदात में इजाफा हुआ है। वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है और उसमें जो है वो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स जो है वो बहुत नीचे आ गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकानमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा। और साथ में जो है वो हमारी एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रही है और उसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। चीज़ों ने जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एफएक्स लिक्विडिटी है उसको बहुत बेहतर कर दिया और इस बेहतरी के साथ जो है वो ज़ाहिर मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसमें काफ़ी। और पाकिस्तानी चावल की दुनिया भर में डिमांड है। 4 अरब डॉलर्स का राइस एक्सपोर्ट करने वाले शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में तकरीब से खिताब। छोटे कारोबार SMEs का सेल गवर्नर हाउस में कायम करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि क्या तमाम सियासी जमातें मुल्क की एक्सपोर्ट को 15 अरब रुपए डॉलर तक पहुंचाने के लिए एक नहीं हो सकती। सनतकारों से कहता हूं, आप बिला खौफ खतर होकर काम करें, कोई तंग नहीं करेगा। राइस की बात करते हैं, राइस की डिमांड दुनिया में है, तो ये जो SMEs हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को और फिर उनकी एक्सपोर्ट तक के सफ़र को आसान बनाने के लिए ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं बहैसियत गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस के अंदर हम एक स्पेशल सेल का क़याम आज से कर देंगे जहाँ जो SMEs हैं उनको ख़ास तवज्जो दी जा सके, उन लोगों के मसाइल हल किए जा सके। तो क्या पाकिस्तान से 15 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर से उनको नज़र आए कि तमाम सियासी जमातें अपने अपने कामों और मफादात लिए एक हो सकती हैं, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी हम सब एक हो सकते हैं। माली साल की पहली सैमाही में दरामदात और बरामदात में नुमाया इजाफा देखा गया है। विफाकी इदारे शुमारियात ने तिजारती अदादोशुमार जारी कर दिए हैं। तिजारती खसारा बढ़ गया, दरामदात और बरामदात में भी इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात ने तिजारती अदादोशुमार जारी कर दिए। जुलाई से सितंबर तिजारती खसारा 5 अरब 43 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। खसारे में 11.14% इजाफा हुआ। बरामदात 7 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर रही, जिसमें 24.4% इजाफा देखा गया, जबकि दरामदात 13 अरब 31 करोड़ डॉलर रही और इसमें 86.9% इजाफा हुआ। PTI की साबिक जमाइमा का भाई इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया। ज़ैक गोल्ड स्मिथ का इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की हिमायत में अहम बयान सामने आ गया। ज़ैक स्मिथ ने सेहोनी नाजायज रियासत के हक में ट्वीट किया कि इसराइल जिंदगी और वजूद के लिए जंग लड़ रहा है, हमारी खातिर इसराइल को जीतना जरूरी है। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं कि एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं। एक शख्स को फेवरेट बनाकर पेश किया जा रहा है जिन्होंने अदालतों को धमकियां दी हैं। इस वक्त जजेस क्यों खामोश रहे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, आईनी अदालत इंतहाई ज़रूरी है। चाहते हैं निज़ाम ठीक हो ताकि आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हो। जस्टिस काजी फायज़ की इतनी ही इज्जत करते हैं जितनी जस्टिस मंसूर की। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों ने जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई हैं। पार्टी वो जाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कंसेंसस पैदा हो, वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फायदा दे रही हैं, बाकी लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशंस जो हैं वो इस जो है जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 से मुतालिक तशरीह आदाब का ख्याल ना रखने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने PTI वकील बैरिस्टर अली जफर पर बरहमी का इजहार किया। बोले, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुतालिक तशरीह, तहरीक इंसाफ के वकला आदाब अदलिया भुला बैठे। मुस्तफीन काज़मी ने लार्जर बेंच को गैर आईनी करार दे दिया।
धमकी लगाई, 500 वकला बाहर हैं। देखते हैं फैसला मुखालफत पर कैसे आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पुलिस को बोलकर मुस्तफीन काज़मी को बाहर निकलवा दिया। अली जफर को मुखातिब करके बोले, ये क्या हो रहा है? जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो गया है। बोले आप आएं और हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल ने अली जफर से कहा, आपके रवैये से जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुताद्दिद खामियां हैं। इस केस की 6 समातें हो चुकी हैं, मगर पीटीआई की जानिब से ताख़ीर का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुताद्दिद खामियां हैं। इस केस की 6 समातें की। पीटीआई ने हर बार ताख़ीर इख्तियार की। पीटीआई के 13 जून 2021 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों या हालिया 3 मार्च 2024 के इंतखाबात, पीटीआई को खामियों पर नोटिस किया गया। इस जमात ने हर बार मजीद वक्त मांगा और हर बार समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की। जून 2022 में फॉर्म 65 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुकम्मल दस्तावेजात जमा कराई गईं। इलामिये में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल लचक का मुजाहरा किया। पीटीआई को आईनी तकाजे पूरे करने के कई मौके दिए। ताखीर की जिम्मेदारी इस पार्टी पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन मामला कानूनी तौर पर हल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए, बुनियादी निकात पर नहीं, चंद ज़ेली निकात पर मौलाना को एतराज़ है। ताहम 2 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम और आइन के शिकों को तोड़ता है। सवाल किया कि अब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहाँ से जिंदा करें? आज अगर गलतियाँ करेंगे तो अगले 10 साल बाद भुगतेंगे। मजीद कहा कि 18वीं तरमीम लाकर हमारा गला दबोचा और कहा गया कि 19वीं तरमीम करो। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है और फिर आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर मामलात इंशाअल्लाह ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे। 12 जुलाई का फ़ैसला आइन और कानून से मुतसादिम है, क्लियरली मुतसादिम है, आइन की शिकों को तोड़ता है। अब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की को कहाँ से ज़िंदा करें? कोई आज अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल हम फिर उसे काटते रहेंगे। मत करें ये गलतियाँ। 18वीं तरमीम आपने लगाई, फिर हमारे गले पे दबोचा हमारा गला और कहा जी कि आप 19वीं तरमीम करो। अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब बरपा है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कि इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि इलेक्ट्रिक बोर्ड सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। कई बार कह चुके हैं कि सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे रखें। 2 मेंबर्स हैं वफाक के, 3 वफाक के हैं, हमें नहीं देते वो बोर्ड की मेंबरशिप। और जब आप मैनेजमेंट में ना हो तो अंदर की बात आपको पता नहीं चलती है। तो आप लोगों के तवज्जुह से एक बात फिर मैं कहूँगा, जो ये अजाब के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है, उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के बोर्ड पे वफाक के जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से हैं, वो आते नहीं आते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस पे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो ताकि वो मैनेजमेंट को जो ये ज्यादती हो रही है कराची के शहरियों से उसका कुछ अजाला कर। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के फितरी नज़ारों की कशिश के बायस हर साल हज़ारों गैर मुल्की सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन पहली बार गैर मुल्की सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान के सफ़र के लिए अनोखी सवारी टुक यानी रिक्शे का इंतखाब किया। सयाहों के सफ़र का अहवाल बता रहे हैं गिलगित से नदीम खान अपनी इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की सयाहों का एडवेंचर, रक्षों में शुमाली इलाका जात की सैर। तवील सफर के बाद गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे। 7 ममालिक के 10 सयाहों के लिए इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर 5 रक्षे किराए पर लिए गए। सयाह खुद रक्षे चलाकर गिलगित बल्तिस्तान की वादियों तक पहुँचे। रास्ते में कागान,
नारान और बाबूसर टॉप पर सहरंगेज मकामात, झीलों और वादियों की सैर भी की। शाहराए कराकरम पर रक्शे ऐसे दौड़ाए कि सब हैरान रह गए। सयाह कहते हैं गिलगित तक का सफर दुश्वार गुजार और थका देने वाला था, लेकिन रक्षों की वजह से यादगार बन गया। रिवायती सवारी में सफर करके न सिर्फ कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हुए बल्कि मकामी तहजीब और सकाफत को भी करीब से देखा। It's nothing like I've ever seen before in my lifetime. So stunning here. I love it. I'm really having a wonderful time and just really enjoying Pakistan. The people have been so wonderful, so friendly and kind. We're here to provide an amazing adventure for our customers in your beautiful country. We're traveling from Islamabad to the Chinese border in tuk-tuks, which are really not designed to do this. Tuk-tuks are designed to run around Rawalpindi and Islamabad. Here we're doing 1,000 kilometers in 8 days. गिलगित के बाद गैर मुल्की सयाह रक्षों में सतह समंदर से 16,000 फीट बुलंदी पर वाक़ पाक चीन सरहद खुंजराब पास पहुँचेंगे। ये कुल जो है ना 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, 7 ममालिक से मेंबर्स ने इसमें शरीक हुए हैं। इस एडवेंचर का नाम हमने पाकिस्तान टुक टुक एडवेंचर 2024, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी है। सेल्फ ड्राइव रिक्शा है। इस्लामाबाद सरीना से हमने 24 को स्टार्ट लिया था और 1 अक्टूबर को ये इस्लामाबाद सरीना गिलगित में एंड कर जाएंगे। नॉर्थ फेस हमारी कंपनी है जो इस पूरे एक्टिविटी को अरेंज करती है। सयाहती मुहिम में कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड और अमेरिका के सयाह शामिल हैं। गैर मुल्कियों का ये टुक टुक सफर न सिर्फ खुशगवार बन रहा है बल्कि यादगार भी बन रहा है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। तीसरी आलमी जंग का तबल बजता महसूस हो रहा है। नाजायज़ और काबिज रियासत इजराइल ने 4 रियासतों को निशाना बनाया तो ईरान हरकत में आ गया। आज एक बड़े हमले में ईरान ने 400 मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। इजराइल में खौफ व हरास फैल गया है, सायरन बज उठे हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेट रोकने में नाकाम रहा। हमास, हिजबुल्लाह की जानिब से भी हमले किए गए। तल अबीब में फायरिंग के नतीजे में 9 इसराइली मारे गए। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान में एक झड़प के दौरान 2 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। दुनिया तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने लगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान का बड़ा रद्द अमल। 400 मिसाइल फायर कर दिए। रात की तारीकी में ईरानी मिसाइल और रॉकेटों की बारिश से इसराइल में खौफ व हिरास फैल गया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी बंकर्स में पनाह लेने के लिए भागते नजर आए। ईरानी मिसाइलों का निशाना नाजायज रियासत का दारुल हुकूमत तल अबीब था। फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली दिफाई निजाम इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों को नाकाम ना बना सका और कई मिसाइल शहरों में गिरे। इनके धमाकों से लम्हे भर में आसमान रोशन हो गया। कई रॉकेट तल अबीब और शरोन में गिरे। हिजबुल्लाह ने भी दुश्मन के औसान कता कर दिए। लबनान से भी तल अबीब पर कई रॉकेट बरसा दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल, इराक और उर्दुन ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार, तंज़ो मज़ा के बादशाह, टीवी और स्टेज की मारूफ शख्सियत उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए हैं। उमर शरीफ ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फ़नी सफ़र शुरू किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज़ किए। बकरा किस्तों पे और बुढ़ा घर पर है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामे पेश किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।